Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about case taking. And case taking is all about aphorisms 83 to 104. Let us start by having an overview of these aphorisms. Aphorism 83 states qualities of a physician. Aphorism 84 states recording of symptoms. Aphorism 85 states that every new symptom should be started on a fresh line. Aphorism 86 states precise particular information. Aphorism 87 states details of symptoms. Aphorism 88 states use of general expression. Aphorism 89 states precise and special questions. Aphorism 90 states observation. Aphorism 91 states past treatment and recording. Aphorism 92 states recording of acute symptoms. Aphorism 93 states private interrogation. Aphorism 94 states investigation of maintaining cause. Aphorism 95 states recording of long suffering. Aphorism 96 states recording of hypochondriac case. Aphorism 97 states recording of indolent case. Aphorism 98 states record only patient's language. Aphorism 99 states recording acute case is easy. Aphorism 100 to 102 states investigation of epidemic disease in particular. Aphorism 103 states investigation of SORA. And aphorism 104 states sketching the picture of disease is the toughest task which is now accomplished. अब आपने ये तो सारा ओवरव्यू देख लिया है. ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से एफोरिज्म में क्या समझाया गया है. तो ये ओवरव्यू इसलिए दिया है मैंने. आगे अब हम इस एफोरिज्म्स को रीड करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट बाय रीडिंग. 83 एफोरिज्म को पढ़ते हैं. This individualizing examination of a case of disease for which I shall only give in this place general directions of which the practitioner will bear in mind only what is applicable for each individual case demands of the physician nothing but freedom from prejudice and sound senses, attention in observing and fidelity in tracing the picture of the disease. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ने ये चीज़ बहुत स्पेसिफिकली क्लियर कर दी है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर केस को एग्जामिन करने से पहले हमारे पास एक जनरल डायरेक्शन होना चाहिए. ठीक है. और उस जनरल डायरेक्शन को डॉक्टर हेनेमन ने इस एफोरिज्म में ले आउट किया है कि कैसे आपने केस टेकिंग करनी है, कैसे आपने इंडिविजुअल केस टेकिंग करनी है, क्योंकि हर केस में आप सेम क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते. ठीक है. तो हर केस अलग है तो उसके गाइडलाइंस, उसके डायरेक्शंस अलग होंगे. तो जो कॉमन चीज़ है इसमें वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो फिजिशियन है ही शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर. ठीक है. हमने ये पहले भी पढ़ा था कि पेशेंट को देखने के लिए सबसे पहले फिजिशियन को अनप्रेजुडाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है. पहले से ही दिमाग में एक मतगणना नहीं बना के रखनी कि ऐसा ही केस हो सकता है या यही दवाई जा सकती है. हमें पूरी टोटलिटी देखनी है पेशेंट की. ठीक है. फिजिशियन साउंड सेंसेस में होना चाहिए. ठीक है. उसकी अटेंशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वो ऑब्जर्व कर सके पेशेंट को, उसकी हरकतों को, उसके अटेंडेंट से चीज़ें पूछ सके. ठीक है. और तभी वो फिडिलिटी मतलब एक्यूरेसी, तभी फिजिशियन एक एक्यूरेट डिजीज़ पिक्चर क्रिएट कर पाएगा. ठीक है. तो वो एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. चलिए अब नेक्स्ट एफोरिज्म देखते हैं. एफोरिज्म नंबर 84. The patient details the history of his sufferings. Those about him tell what they heard him complain of, how he has behaved, and what they have noticed in him. The physician sees, hears, and remarks by his other senses what there is of an altered or unusual character about him. He writes down accurately all that the patient and his friends have told him in the very expressions used by them. Keeping silence himself, he allows them to say all they have to say and refrains from interrupting them unless they wander off to other matters. The physician advises them at the beginning of the examination to speak slowly in order that he may take down in writing the important parts of what the speakers say. Every interruption breaks the train of thought of the narrators, and they would have said at first does not again occur to them in precisely the same manner after that.
इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ये बता रहे हैं कि पेशेंट अपनी डिटेल देता है जब हिस्ट्री की, अपनी सफरिंग्स की, और साथ ही में जो उसके अटेंडेंट्स हैं, अगर उसके फ्रेंड्स हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, जो भी आते हैं उसके साथ, वो भी बताते हैं कि क्या वो सुनते हैं कि क्या कंप्लेंट है पेशेंट को, ठीक है, कैसे वो बिहेव करता है जब वो बीमार होता है, उन लोगों ने पेशेंट के अंदर ऐसी क्या चीज़ नोटिस करी जो कि पिक्यूलियर है, और एक रिमार्क बना लेगा अपने सेंसेस से कि क्या चीज़ अनयूजुअल है उस कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, उस पेशेंट के बारे में ऐसा क्या है जो अनयूजुअल है, और उन सब चीज़ों को एक्यूरेटली राइट डाउन करना है, ठीक है, जो भी पेशेंट ने बताया, जो भी उसके फ्रेंड ने बताया, और सेम उसी तरीके में, उसी एक्सप्रेशन में जो कि उन्होंने यूज़ किया, ठीक है। खुद को साइलेंस रखना है, फिजिशियन को चुप रहना है, ताकि आप दूसरे के जो थॉट्स हैं, जो बात वो बताना चाह रहा है, वो आप इंटरप्ट ना कर दें, क्योंकि इस फुटनोट में यही लिखा हुआ है कि जो ट्रेन ऑफ थॉट है अगर एक बार इंटरप्ट हो गई, ठीक है, तो जो वो पहले कहना चाहते थे हो सकता है कि वो उस तरीके से ना कह के किसी और तरीके में कहें, तो वहाँ पर इंटरप्शन से ये हो सकता है कि पेशेंट जो पहले कहना चाह रहा हो जिस तरीके से, जिस एक्सप्रेशन को यूज़ करके, हो सकता है सेकेंड टाइम जब वो उसे बताए तो वो प्रिसाइज ना हो। मोर ओवर डॉक्टर हेनेमन ने यहाँ ये भी कहा है कि जब आप केस टेकिंग शुरू करें तो आप पहले ही इत्तला कर दें पेशेंट को कि आप थोड़ा धीरे बोलिएगा, एंड दैट शुड बी इन अ पोलाइट टोन, ठीक है। आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप थोड़ा धीरे बोलिएगा क्योंकि मुझे चीज़ें नोट डाउन करनी है, तो दैट विल मेक योर वर्क ईजियर, ठीक है। अब पेशेंट भी धीरे बोल रहा है, आप सब चीज़ें लिख भी पा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको इंटरप्ट ना करना पड़े बार बार पेशेंट को कि अच्छा क्या कहा था आपने, सॉरी मैंने मिस कर दिया। इससे क्या होता है ना कि जो पेशेंट का थॉट प्रोसेस है, जो ट्रेन चल रही है थॉट्स की बेसिकली, वो इंटरप्ट हो जाती है, ठीक है, तो हमें वो चीज़ अवॉइड करनी है यहाँ पे। अगला एफोरिज्म पढ़ते हैं, एफोरिज्म नंबर 85। He begins a fresh line with every new circumstance mentioned by the patient or his friends so that the symptoms shall be all ranged separately one below the other. He can thus add to any one that may at first have been related in too vague a manner but subsequently more explicitly explained. अब इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि हर नया सर्कमस्टांस जो भी उसकी लाइफ में हैपनिंग हुई, जिससे भी उसको लगता है कि इस रीज़न की वजह से उसे दिक्कत आई होगी, वो हर सर्कमस्टांस आपने एक नई लाइन से शुरू करना है। जो नया सर्कमस्टांस पेशेंट बताए उसको आप एक फ्रेश लाइन से लिखना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब वो आपको चीज़ें बता रहा है तो वो वेगली बता रहा है, ठीक है, बहुत कम बता रहा है, पर लेकिन जब आप उसको बाद में इंटेरोगेट करोगे उस सर्कमस्टांस को तो आपको एक प्रॉपर डिटेल्स बताए, ठीक है। हो सकता है कि पहले में वो थोड़ा वेगली आपको आंसर करे, पर लेकिन ऑन इंटेरोगेटिंग वो आपको एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है। तो इस रेंज को सेपरेट रखने के लिए हम हर सर्कमस्टांस को नए फ्रेश लाइन से शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एफोरिज्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट एफोरिज्म है 86। When the narrators have finished what they would say of their own accord, the physician then reverts to each particular symptom and elicits more precise information respecting it in the following manner. He reads over the symptoms as they were related to him one by one, and about each of them he inquires for further particulars. Example, at what period did this symptom occur? Was it previous to taking the medicine he had hitherto been using, while taking the medicine, or some days after leaving off the medicine? What kind of pain? What sensation exactly? Was it that occurred on this spot? Where was the precise spot? Did the pain occur in fits or by itself at various times, or was it continued without intermission? How long did it last? At what time of the day or night, and in what position of the body was it worst or ceased entirely? Or that event or circumstance mentioned described in plain words. यहाँ डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि जब नरेटर अपनी बात फिनिश कर ले, यानी कि पेशेंट या फिर पेशेंट का अटेंडेंट, ठीक है, कोई भी अपनी बात ख़त्म कर ले, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हर चीज़ के पर्टिकुलर में घुसना है, और वो इन्फॉर्मेशन निकालने का एक तरीका है, एक मैनर है, ठीक है। उसी मैनर में आपको पेशेंट से पूछना है। क्या करेंगे आप? अब आपने जितने भी सिम्टम्स लिख लिए हैं, अब एक एक सिम्टम को आप अलग से पूछिए, ठीक है। हर सिम्टम के बारे में अलग से इंक्वायरी कीजिए, पर्टिकुलर्स के बारे में इंक्वायर कीजिए, जैसे कि किस पीरियड में ये सिम्टम आया,
ठीक है, क्या ये मेडिसिन लेने से पहले था, क्या ये मेडिसिन लेने के बाद था, ठीक है, या आप जिस टाइम मेडिसिन ले रहे थे उस समय ये दिक्कतें आनी शुरू हुई। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन आपने दवाई छोड़ी हो, क्या उसके बाद ये सिम्टम्स आए, ठीक है, कैसा पेन होता है, कैसी सेंसेशन होती है उस पेन में, किस स्पॉट पे वो पेन आता है, क्या वो जो पेन है वो फिट्स में आ रहा है या वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, विदाउट एनी इंटरमिशन, कितने समय तक वो पेन रहता है, ठीक है, और किस समय कम ज़्यादा हो रहा है, डे में हो रहा है, नाइट में हो रहा है, किस पोजीशन में लेटने से आपको आराम मिल रहा है या किस पोजीशन में आपको लेटने से ये कंडीशन वर्स हो रही है, ठीक है। आप ये भी पूछ सकते हैं पेशेंट से कि कैसा नेचर है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इवेंट और सर्कमस्टांस। जो भी पेशेंट नरेट करता है आप उसी के इर्द गिर्द अपनी इंटेरोगेशन रख के और पेशेंट से सारे पर्टिकुलर्स ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस एफोरिज्म में ये पार्ट है जहाँ पे उन्होंने लास्ट में ये लिखा है, इट शुड बी डिस्क्राइब्ड इन प्लेन वर्ड्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे पेशेंट आया, आपने पूछा क्या तकलीफ है आपको, पेशेंट कहता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तकलीफ नहीं है, हाइपरटेंशन तो डिजीज़ का नाम है। आपने पूछना है आप क्या सफ़र कर रहे हैं हाइपरटेंशन की वजह से। बेसिकली हाइपरटेंशन आपको एक बीमारी का नाम दे दिया गया है, पर आपको क्या महसूस हो रहा है, आपके क्या सिम्टम्स हैं, आपके क्या पर्टिकुलर्स हैं, वो हाइपरटेंशन डिस्क्राइब नहीं करती, ठीक है, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक एंटिटी हैं, ठीक है। तो आपके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे हाइपरटेंसिव पेशेंट में भी वही हो। तो फोकस ऑन प्लेन वर्ड्स, सिंपल रखना है हमने केस टेकिंग को। हमने ज़्यादा डायग्नोस्टिक मेजर्स में नहीं जाना, हमने बस ये देखना है कि पेशेंट को तकलीफ़ क्या हो रही है और हमने पेशेंट से बस वही पूछना है, ठीक है, तकलीफ़ क्या है, तकलीफ़ पे हमें फोकस करना है। अब अगले एफोरिज्म की बात करते हैं, एफोरिज्म नंबर 87। And thus the physician obtains more precise information respecting each particular detail, but without ever framing his question so as to suggest the answer to the patient, so that he shall only have to answer yes or no. Else he will be misled to answer in the affirmative or negative something untrue, half true, or not strictly correct, either from indolence or in order to please his interrogator, from which a false picture of the disease and an unsuitable mode of treatment must result. इसका फुटनोट भी रीड कर लेते हैं। For instance, the physician should not ask, was not this or that circumstance present? He should never be guilty of making such suggestions which tend to seduce the patient into giving a false answer and a false account of his symptoms. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हैनेमन बता रहे हैं कि जब फिजिशियन किसी पर्टिकुलर डिटेल के बारे में मोर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है तो उसको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम ना करे या ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जो कि मिसलीडिंग हो, यानी कि जिनका आंसर सिर्फ येस और नो में हो। एक सजेस्टिव क्वेश्चन नहीं पूछना अपने पेशेंट से, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब आप पेशेंट को सिर्फ हाँ और ना का ऑप्शन देते हैं ना, तो वो जनरली आपको मिसलीड कर देता है, क्योंकि या तो वो आपको एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सिचुएशन में लेके जाएगा या तो आपको नेगेटिव सिचुएशन में लेके जाएगा। पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो इंटेरोगेटर को या डॉक्टर को या फिजिशियन को प्लीज़ करना चाहते हैं, जो कि कभी सच नहीं होता या कभी कभार आधा सच होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। और ये जो अफर्मेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं येस और नो, ये इसलिए भी बोला जाता है, पेशेंट इसलिए भी कहता है क्योंकि या तो पेशेंट इंडोलेंट होगा, बदतमीज़ होगा, इसलिए ऐसे आंसर करेगा, ठीक है, कि वो पूरी बात बताना नहीं चाहता, सीक्रेटिव भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो अपनी पिक्चर मतलब अपनी इमेज अच्छी रखना चाहता है डॉक्टर के सामने, इसलिए भी वो पूरी बात सही से नहीं बताता, सच्चाई नहीं बताता, या ऐसा हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन देता हो अपने बारे में ताकि उसकी जो इमेज है वो डॉक्टर के सामने अच्छी बनी रहे। डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट की सेंसिटिविटी कैसी है वो उस तरीके से आंसर करेगा। तो इसलिए जितना हो सकता है आप ऐसे मिसलीडिंग क्वेश्चंस को अवॉइड कीजिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। सपोज हमने किसी पेशेंट के क्रिटिसिज्म पे रिस्पॉन्स चेक करना है कि पेशेंट क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करता है, तो अब हम ऐसे नहीं पूछेंगे पेशेंट से कि यार आपके अंदर कोई कमी निकालते तो आपको गुस्सा तो नहीं आता, तो पेशेंट बोलेगा हाँ आता है या बोलेगा नहीं आता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हाँ ना वाली हमने पैदा नहीं करनी पेशेंट के लिए। हमने ये ध्यान रखना है कि पेशेंट हमें पूरे तरीके से एक्सप्लेन करे कि उसके इमोशंस क्या आते हैं। अब हमने तो सिर्फ वहाँ गुस्सा लिया, हो सकता है पेशेंट को बुरा लगता हो, ठीक है। तो हर्ट और एंगर में बहुत डिफरेंस है।
तो इसलिए हम ये चीज़ पूछेंगे कि आपके अंदर कोई कमी निकालता है तो आप क्या करती हैं, ठीक है। हम पेशेंट का रिस्पॉन्स उससे पूछेंगे, ठीक है। अब आपको पता है बीइंग एन होम्योपैथ आप थेरेपिस्ट भी हैं, आपके पास आधे पेशेंट्स तो इसलिए भी आते हैं क्योंकि आप उनका दुख दर्द पूछ लेते हैं केस टेकिंग में, ठीक है। तो आप वो चीज़ बरकरार रखें, पर लेकिन अपने क्वेश्चंस फ्रेम करने की जो टेक्निक है उसको थोड़ा पॉलिश कीजिए ताकि आप पेशेंट की जो ट्रू पिक्चर है, ट्रू इमेज है, उसको निकाल पाएँ, ठीक है। अगला एफोरिज्म पढ़ते हैं, एफोरिज्म नंबर 88। If in these voluntary details nothing has been mentioned respecting several parts or functions of the body or his mental state, the physician asks what more can be told in regard to these parts and these functions, or the state of his disposition or mind, but in doing this he only makes use of general expressions in order that his informants may be obliged to enter into special details concerning them. For example, what was the character of his tools? How does he pass his water? How is it with his day and night sleep? What is the state of his disposition, his humor, his memory? What about thirst? What sort of taste has he in his mouth? What kinds of food and drink are most relished? What are most repugnant to him? Has each its full natural taste or some other unusual taste? How does he feel after eating or drinking? Has he anything to tell about the head, the limbs or the abdomen? इस एफोरिज्म में अब डॉक्टर हेनेमन ये बता रहे हैं कि जब पेशेंट अपनी सारी बात ख़त्म कर लेता है और आपको लगता है कि उसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं निकला, जैसे कि पेशेंट ने अपनी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बताया, अपनी मेंटल स्टेट के बारे में नहीं बताया, किसी फंक्शन या किसी भी पार्ट के बारे में वो भूल गया है बताना, तो आप दोबारा इंटेरोगेट करेंगे। आप पूछेंगे, अपने जनरल एक्सप्रेशंस ही यूज़ करेंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि इन पार्ट्स के बारे में उन्हें क्या लगता है, जैसे कि स्टूल्स का कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि स्टूल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अंडरस्टैंडिंग कि पेशेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है। हम पेशेंट से उसके यूरिन के बारे में पूछेंगे, कैसा रूटीन है, ठीक है, और नाइट स्लीप कैसी है, डे स्लीप कैसी है पेशेंट की, उसकी डिस्पोजिशंस क्या है, ह्यूमर क्या है, मेमोरी कैसी है, ठीक है। हम पेशेंट की थर्स्ट के बारे में पूछेंगे, कैसा टेस्ट है उसके माउथ में अभी करंटली, ऐसा तो नहीं कि टेस्ट आ रहा है या आ ही नहीं रहा है, टेस्ट बड ने अपनी सेंसेशन लॉस तो नहीं कर ली है, ठीक है। हम फूड एंड ड्रिंक्स के बारे में पूछेंगे कि क्या चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद है, क्या रेलिश करता है पेशेंट, ठीक है। कहीं कोई चीज़ उसको रिपंजेंट तो नहीं लगती, नॉजियाटिक फीलिंग तो नहीं आती किसी चीज़ को देख के या खाकर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछेंगे। और कुछ खाने के बाद, पीने के बाद पेशेंट को कैसा फील होता है। अगर मान लीजिए हमने पेशेंट से पूछा कि मेन चीफ कंप्लेंट क्या है, उसने बताया सिर में दर्द है, अब उसने सारी स्टोरी नरेट कर दी पर सिर दर्द के बारे में नहीं बताया, सेंसेशन नहीं बताई, तो अब हम सारी चीज़ों के बारे में एक बार टोटलिटी ले लेंगे, पूछ लेंगे कि हेड में कोई दिक्कत तो नहीं है, एब्डोमेन में कोई दिक्कत तो नहीं है, लिम्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो एक ओवरऑल व्यू ले लेंगे हम पेशेंट का। अब एफोरिज्म नंबर 89 रीड करते हैं। When the patient, for it is on him we have chiefly to rely for a description of his sensations, except in the case of faint disease, has by these details given his own accord and in answer to enquiries furnished the requisite information and traced a tolerably perfect picture of the disease, the physician is at liberty and obliged, if he feels he has not yet gained all the information he needs, to ask more precise and more special questions. ओके अब इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि जब पेशेंट ने अपनी सारी डिटेल्स दे दी अपने अकॉर्ड पे, ठीक है, जो कि चीफली हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट पे हम इन सेंसेशंस के बारे में रिलाई कर सकते हैं कि पेशेंट ही अपनी सेंसेशंस बताएगा कि कैसे पेन की सेंसेशंस हैं उसे। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब आपने सारी इंक्वायरी कर ली है, सारे आंसर्स पेशेंट ने आपको दे दिए हैं, तब भी आपको अगर लगे कि नहीं अभी भी परफेक्ट पिक्चर नहीं बन पा रही है डिजीज़ की, तो डॉक्टर हेनेमन कहते हैं कि आप लिबर्टी पे हैं, यू आर एट ईज, आप पूछ सकते हैं, यू आर ऑब्लाइज्ड टू ask more questions, more precise and more special questions। अब वो special questions डॉक्टर हेनेमन ने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे कि for example, how often are his bowels moved? What is the exact character of the stool? Did the whitish evacuation consist of mucus or feces? Had he or had he not pains during evacuation? What was their exact character and where were they seated? What did the patient vomit?
Is the bad taste in the mouth putrid or bitter or sour or what? Before or after eating or during the repast? At what period of the day was it worst? What is the taste of what is eructated? Does the urine only become turbid on standing, or is it turbid when first discharged? What is its color when first emitted? Of what color is the sediment? How does he behave during sleep? Does he whine, moan, talk, or cry out in his sleep? Does he start during sleep? Does he snore during inspiration or during expiration? Does he lie only on his back or on which side? Does he cover himself well up, or can he not bear the clothes on him? Does he easily awake, or does he sleep too soundly? How often does this or that symptom occur? What is the cause that produces it each time it occurs? Does it come on while sitting, lying, standing, or when in motion? Only when fasting or in the morning, or only in evening, or only after meal, or when does it usually appear? When does the rigor come on? Was it merely a chill sensation, or was he actually cold at that time? If so, in what parts? Or while feeling chilly, was he actually warm to the touch? Was it merely a sensation of cold without shivering? Was he hot without redness of the face? What parts of him were hot to touch? Or did he complain of heat without being hot to the touch? How long did the chilliness last? How long the hot stage? When did the thirst come on? During the cold stage, during the heat, or previous to it, or subsequent to it? How great was the thirst, and what was the beverage desired? When did the sweat come on? At the beginning or at the end of the heat, or how many hours after the heat? When asleep or when awake? How great was the sweat? Was it warm or cold? On what parts? How did it smell? What does he explain of before or during the cold stage? What during the hot stage? What after it? What during or after the sweating stage? Added to the 6th edition, in women, note the character of menstruation and other discharges etc. अब यहाँ पर डॉक्टर हेनेमन ने इस एग्जाम्पल इस फुटनोट के थ्रू एग्जाम्पल्स दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें आप और प्रिसाइजली पेशेंट से पूछ सकते हैं. ठीक है, आप उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल स्टेट के बारे में और जान सकते हैं, और कैसे जान सकते हैं, क्या क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, आपने मोडालिटीज़ पूछनी है पेशेंट से. मोडालिटीज़ मतलब किस चीज़ से उसको एग्रावेट हो रहा है, किस चीज़ से एम्लियोरेट हो रहा है, पेशेंट की लोकेशन, पेशेंट की सेंसेशन. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है यहाँ पे. किस समय में कम ज़्यादा हो रहा है, नाइट में, इवनिंग में, बिफोर मील, आफ्टर मील. स्टूल के लिए पूछेंगे तो बिफोर स्टूल पेन होता है, ड्यूरिंग स्टूल पेन होता है जब आप इवैक्यूएट करते हैं, या आफ्टर द स्टूल आपको पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन कब होती है. तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. इस फुटनोट में डॉक्टर हेनेमन ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, और 6th एडिशन में एक नया एडिशन हुआ था. उसमें डॉक्टर हेनेमन ने कहा कि जब आप एक वुमेन, स्पेसिफिकली एक वुमेन का केस ले रहे हो, तो प्लीज़ उसके मेंस्ट्रुएशन के कैरेक्टर को लिखिए, और जितने भी उसके बॉडीली डिस्चार्ज है जैसे कि लिकोरिया है, तो इन सब डिस्चार्जेस के बारे में आप एक डिटेल ले लीजिए. अगला एफोरिज्म रीड करते हैं, एफोरिज्म नंबर 90. When the physician has finished writing down these particulars, he then makes a note of what he himself observes in the patient and ascertains how much of that was peculiar to the patient in his healthy state. For example, how the patient behaved during the visit, whether he was morose, quarrelsome, hasty, lachrymose, anxious, despairing or sad, or hopeful, calm, etc. Whether he was in a drowsy state or in any way dull of comprehension, whether he spoke hoarsely or in a low tone or incoherently, or how otherwise did he talk. What was the color of his face and eyes and of his skin generally? What degree of liveliness and power was there in his expression and eyes? What was the stage of his tongue, his breathing, the smell from his mouth, and his hearing? Were his pupils dilated or contracted? How rapidly and to what extent did they alter in dark and in the light? What was the character of the pulse? What was the condition of the abdomen? How moist or hot? How cold or dry to touch?
Was the skin of this or that part more generally, whether he lay with the head thrown back or with mouth half or wholly open, with the arms placed above the head on his back, or in what other position? What effort does he make to raise himself, and anything else in him that may strike the physician as being remarkable? इस एफोरिज्म में डॉक्टर हैनेमन अब ये बता रहे हैं कि फिजिशियन जब सारे पर्टिकुलर्स को लिख ले तो उसके बाद एक चीज़ का नोट और करना है, एक चीज़ पे ध्यान और देना है, और वो है कि पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट। क्योंकि पेशेंट पहले कैसा था हेल्दी स्टेट में और अब किस स्टेट में आपके पास आया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने ये देखना है कि पेशेंट जब विज़िट करता है आपके पास तो वो कैसे बिहेव करता है, क्या वो झगड़ालू है, क्या वो आके रोता है, क्या वो डिस्पेयर में चला जाता है, क्या वो दुखी है, ठीक है, क्या वो एंशियस हो रहा है अपनी हेल्थ को लेके, या वो होपफुल है, पॉजिटिव है, काम है, कैसा है, ठीक है, क्या वो आपको आंसर एक ड्राउजी वे में दे रहा है या कहीं उसका कॉम्प्रिहेंशन डन तो नहीं लग रहा किसी तरीके से, क्या वो होर्सली बात कर रहा है, बहुत लाउडली बात कर रहा है आपसे, या लो टोन में बात कर रहा है, ठीक है, इनकोहेरेंटली बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, बेसिकली वो जानना है आपने, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है। पेशेंट के फेस की, आइज़ की, स्किन के कलर को ऑब्ज़र्व करना है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। पेशेंट की आपने लाइवलीनेस की डिग्री को देखना है कि यार इसमें उम्मीद बची है, इसको लग रहा है ये कैसा अपने आप को लेके आया मेरे पास, ठीक है। उसकी पावर ऑफ एक्सप्रेशंस देखने हैं आपने, ठीक है, आपने टंग की स्टेट देखनी है, उसकी ब्रीदिंग देखनी है, देखना है कहीं उसके माउथ से स्मेल तो नहीं आ रही, उसके हियरिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, प्यूपिल्स डायलेटेड तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड तो नहीं है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर हैनेमन ने यहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करने के लिए दी हैं। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब पेशेंट आपके पास आता है, जब विज़िट करता है, तो उस समय आपने इन सब बिहेवियर को नोट डाउन करना है, ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट एफोरिज्म है एफोरिज्म 91। The symptoms and feelings of the patient during a previous course of medicine do not furnish the pure picture of the disease. But on the other hand, those symptoms and ailments which he suffered from before the use of medicines or after they had been discontinued for several days give the true fundamental idea of the original form of the disease. And these especially the physician must take note of. When the disease is of a chronic character and the patient has been taking medicine up to the time he is seen, the physician may with advantage leave him some days quite without medicine, or in the meantime administer something of an unmedicinal nature and defer to a subsequent period to more precise scrutiny of the morbid symptoms, in order to be able to grasp in their purity the permanent uncontaminated symptoms of the old affection and to form a faithful picture of the disease. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हैनेमन बता रहे हैं कि जो सिम्टम्स और फीलिंग्स पेशेंट को प्रीवियस कोर्स के टाइम पे आ रही है, जब उसने मेडिसिन ली, कोई भी कोर्स किया, चाहे एलोपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे होम्योपैथिक, तो उस समय जो पेशेंट को फीलिंग्स थी या सिम्टम्स थे ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो हमारे लिए कभी भी ट्रू पिक्चर नहीं है डिजीज़ की, ठीक है। हमारे लिए ट्रू पिक्चर दो केसेस में है, या तो जब पेशेंट को सबसे पहले एलिमेंट आए थे, जब उसने दवाई ली ही नहीं थी, ठीक है, कोई कोर्स किया ही नहीं था, तो या तो वो ट्रू नेचर है हमारे पास डिज़ीज़ का, और या फिर जब बहुत दिन डिसकंटिन्यू कर दी हो उसने अपनी मेडिसिन्स, ठीक है, उसके बाद जो नेचर बचा है पेशेंट के पास, सिम्टम्स बचे हैं, वो सिम्टम्स एक ट्रू पिक्चर बनाएगा, ठीक है, ट्रू पिक्चर ऑफ डिजीज़ बनाएगा। तो हमने ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसकी बीमारी क्रॉनिक है, तो और वो बहुत लंबे समय से मेडिसिन ले रहा है, तो हमने ये ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट को हमने तुरंत मेडिसिन नहीं देनी, हमें कुछ समय के लिए, क्योंकि जो प्रीवियस कोर्स वो ले रहा था हमें नहीं पता उसने क्या अपने इफ़ेक्ट्स डाले हैं बॉडी पे, ठीक है, पर लेकिन वो ट्रू पिक्चर तो नहीं है, तो इसलिए हम वेट करेंगे कुछ टाइम के लिए, हम उसे अनमेडिसिनल नेचर की कोई भी मेडिसिन दे देंगे, ठीक है, मतलब बेसिकली हम प्लेसिबो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देंगे ताकि एक सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए वो डेफर हो जाए, और फिर उसके बाद जो सिम्टम्स निकल के आएंगे वो ट्रू डिजीज़ पिक्चर होगी। अब अगले एफोरिज्म की बात करते हैं। ये तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर क्रॉनिक डिजीज़ में पेशेंट आ जाए आपके पास तो आपने क्या करना है।
अगर वो पहले से ही प्रीवियसली कोई मेडिसिन ले रहा हो तो आपने क्या करना है, आपने कुछ समय के लिए उसे डेफर कर देना है बाय गिविंग अनमेडिसिनल सब्सटेंस, यानी कि प्लेसिबो दे सकते हैं आप पेशेंट को। पर लेकिन अगर वो रैपिड कोर्स का आ जाए तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एफोरिज्म में, दैट इज़ एफोरिज्म नंबर 92। बट इफ़ इट बी अ डिजीज़ ऑफ अ रैपिड कोर्स and if its serious character admit of no delay, the physician must content himself with observing the morbid condition, altered though it may be by medicines, if he cannot ascertain what symptoms were present before the employment of the medicines, in order that he may at least form a just apprehension of the complete picture of the disease in its actual condition, that is to say, of the conjoint malady formed by the medicinal and the original diseases, which from the use of inappropriate drugs is generally more serious and dangerous than was the original disease, and hence demands prompt and efficient aid, and by thus tracing out the complete picture of the disease, he will be enabled to combat it with a suitable homeopathic remedy, so that the patient shall not fall a sacrifice to the injurious drugs he has swallowed. अब यहाँ पे डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि जब कोई रैपिड कोर्स का पेशेंट आ जाए, जिसकी डिज़ीज़ बहुत रैपिड कोर्स से मूव ऑन कर रही हो, और जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप डिले नहीं कर सकते, अगर आप डिले करेंगे तो पेशेंट तो भगवान को प्यारा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, फिजिशियन को इतने में भी कंटेंट ही रखना होता है। ठीक है, फिजिशियन शुड बी कंटेंटेड कि हाँ चलो अब तो आ गया पेशेंट, कि अब तो हम इसे बचा सकते हैं, पहले नहीं आया ठीक है कोई बात नहीं, पर अब जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम इससे भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक रैपिड कोर्स वाली डिज़ीज़ है, ऐसी डिज़ीज़ में अब आपको अगर हो सकता है ट्रू पिक्चर ना मिले। ट्रू पिक्चर क्या होती है, जो कि डिज़ीज़ जब शुरुआत में हुई बिना मेडिसिन दिए आपके पास जो सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स आपकी ट्रू डिज़ीज़ पिक्चर बनाती है। पर लेकिन वो सिम्टम्स अगर आपको नहीं पता चल पा रहे तो अब क्या करेंगे अब आप उसको पेशेंट को कैसे ठीक करेंगे। तो पेशेंट को ठीक करने के लिए अब आपके पास एक कंजॉइंट मैलेडी है जो कि मेडिसिनल डिजीज़ भी है और ओरिजिनल डिजीज़ का एक फॉर्मेशन है। बेसिकली पहले आपको सिर्फ ओरिजिनल डिजीज़ ठीक करनी थी अगर पेशेंट आपके पास अनमेडिकेटेड आता तो, पर लेकिन अब पेशेंट तो मेडिसिन लेके आया है, अब आपके पास एक कंजॉइंट मेलेडी है जिसमें आपके पास ओरिजिनल डिज़ीज़ तो है पर साथ में जो मेडिसिन ने डिज़ीज़ क्रिएट कर दी वो भी है। तो अब आप ये ध्यान में रखेंगे कि आप इन दोनों डिजीज़ का जो मैलेडी है उसको स्टडी करेंगे और फिर एक टोटलिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, और जब वो टोटलिटी क्रिएट करेंगे तो जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट से मिनिमम होगी आप वो पेशेंट को देंगे एंड द पेशेंट विल कॉम्बैट इट। अगला एफोरिज्म रीड करते हैं, एफोरिज्म 93। If the diseases has been brought on a short time or in the case of a chronic affection, a considerable time previously by some obvious cause, then the patient or his friends when questioned privately will mention it either spontaneously or when carefully interrogated. Any causes of a disgraceful character which the patient or his friends do not like to confess, at least not voluntarily, the physician must endeavor to elicit by skillfully framing his questions or by private information. To these belong poisoning or attempted suicide, onanism, indulgence in ordinary or unnatural debauchery, excess in wine, cordials, punch or other ardent beverages or coffee, overindulgence in eating, generally in some particular food of a hurtful character, infection with venereal disease or itch, unfortunate love, jealousy, domestic infacility, worry, grief on account of some family misfortune, ill usage, bald revenge, injured pride, embarrassment of a pecuniary nature, superstitious fear, hunger, or an imperfection in the private parts, a rupture, a prolapse, and so forth. अब इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि जब आपको डिज़ीज़ का पता चल गया, चाहे वो शॉर्ट टाइम में हुई हो, चाहे वो क्रॉनिक अफेक्शन हुआ हो, और पेशेंट को पता हो कि उसका ऑब्वियस कॉज ये हो सकता है,
पर लेकिन अगर आप पेशेंट से पूछें या उसके फ्रेंड से पूछें, कई बार क्या होता है कि पेशेंट आपको स्पॉन्टेनियसली बता देता है कि हाँ ये रीज़न हो सकता है मेरी इस बीमारी का। पर कई बार आपको बहुत केयरफुली इंटेरोगेट करना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि वो अपनी डिटेल्स इतनी ईजिली शेयर नहीं करना चाहता आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट या आउट ऑफ किसी भी कैरेक्टर की वजह से, ताकि उसके कैरेक्टर को डिस्ग्रेसफुल ना माना जाए। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्लीज़ द इंटेरोगेटर, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको पता हो कि कोई ऑब्वियस कॉज हो सकता है, तो आप पेशेंट को अच्छे से या पेशेंट के फ्रेंड को अच्छे से इंटेरोगेट करेंगे। इसका एग्जाम्पल डॉक्टर हैनेमन ने यहाँ दिया कि ये किस किस वजह से हो सकता है, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको बहुत स्किलफुली फ्रेम करना पड़ेगा क्वेश्चंस, क्योंकि आपको ये बहुत ही प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पेशेंट से निकालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको कॉज पता चल गया, यानी कि आपने हाफ केस तो वैसे ही ठीक कर दिया, अगर आपको कॉज पता चल गया पेशेंट की दिक्कत का। तो कई बार होता है पेशेंट खुद से कन्फेस नहीं करना चाहता या कर नहीं पाता, उसे ठीक नहीं लगता कन्फेस करना, तो आपको बहुत स्किलफुली क्वेश्चंस फ्रेम करने होंगे। अब ये क्वेश्चंस किसके रिगार्डिंग हो सकते हैं? हो सकता है कि पेशेंट ने कभी खुद को पॉइजन करने की कोशिश की हो, कभी उसने सुसाइड करने की कोशिश की हो, तो आप उन सब चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं पेशेंट से भी और पेशेंट के अटेंडेंट से भी। ठीक है, ओनानिज्म के बारे में पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि कहीं कोई अननेचुरल डिपॉचरी में तो उसका हाथ नहीं रहा, किसी इंडल्जेंस तो नहीं रही ऐसी चीज़ों में, कहाँ कभी उसने बहुत एक्सेसिव वाइन ड्रिंक तो नहीं की है, कॉर्डियल्स, पंच, बेवरेजेस। ठीक है, ये जितनी भी आर्डेंट बेवरेजेस हैं कहीं इसमें तो वो नहीं ज़्यादा रहा है, कॉफ़ी ज़्यादा ड्रिंक तो नहीं करते, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ होते हैं किसी भी सिम्टम के अराइज होने के लिए। ये आउट ऑफ लव भी हो सकता है, अनफॉर्चुनेट लव, कि प्यार नहीं मिला इसलिए ऐसी बीमारी आनी शुरू हो गई। जेलसी हो सकता है रीज़न, डोमेस्टिक इनफेलिसिटी की वजह से हो सकता है। ठीक है, आप रिवेंज लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे हैं, उस वजह से, किसी वरी की वजह से, बहुत ज़्यादा दुख है आपको ग्रीफ की वजह से। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में, कहीं आपका प्राइड इंजर तो नहीं हुआ है, क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे जब इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है तो मदर इन लॉ बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इस चीज़ से डरती हैं कि अब लोग क्या कहेंगे, कि मेरा जो गुमान था, मेरा जो प्राइड था कि मैं सबसे अच्छी हूँ, मेरे बच्चे सबसे लायक हैं, अब उसने जो ये इंटरकास्ट मैरिज कर लिया उसकी वजह से मेरा जो ये प्राइड है वो चकनाचूर हो गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये आजकल ट्रेंड में कहें तो ट्रेंड में है कि ऐसे सिम्टम्स लोग लेकर आते हैं। तो इन सब चीज़ों की, इन सब कॉजेज़ का इसीलिए महत्व है इन सब चीज़ों को जानना। आप पेशेंट के सुपरस्टिशियस फियर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, प्राइवेटली क्वेश्चन करना है आपने पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को उनके बारे में जानने के लिए। हो सकता है कि कई बार प्राइवेट पार्ट्स में इम्परफेक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, तो पेशेंट खुल के नहीं बता पाता या बता पाती, जैसे कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस बहुत कॉमन है आजकल की विमेन में। ठीक है, पेशेंट आपके पास आएंगी और बोलेंगी कि हाँ ऐसा हो रहा है, पर लेकिन डिटेल नहीं बता पाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कहीं कोई पार्ट रप्चर तो नहीं हो रहा है उनका, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एफोरिज्म आता है एफोरिज्म नंबर 94। While inquiring into the state of chronic disease, the particular circumstances of the patient with regard to his ordinary occupations, his usual mode of living and diet, his domestic situation and so forth, must be well considered and scrutinized to ascertain what there is in them that may tend to produce or to maintain disease, in order that by their removal the recovery may be prompted. In chronic diseases of females, it is especially necessary to pay attention to pregnancy, sterility, sexual desire, accouchements, miscarriages, suckling, and the state of their menstrual discharge. With respect to the last named more particularly, we should not neglect to ascertain if it recurs at too short intervals or is delayed beyond the proper time, how many days it lasts, whether its flow is continuous or interrupted, whether is it general quality, how dark of its color, whether there is leukorrhea before its appearance or after its termination, but especially by what bodily or mental ailments, what sensations and pains it is preceded, accompanied or followed,
If there is leukorrhea, what is its nature? What sensations attend its flow? In what quantity is it? And what are the conditions and occasions under which it occurs? अब यहाँ डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि जब आप किसी क्रॉनिक डिजीज़ की स्टेट को इंक्वायर करते हैं तो जो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस हैं पेशेंट के, उनको भी आपने नोट डाउन करना है। जैसे कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या रहा है, पहले क्या करता था, अब क्या कर रहा है पेशेंट, ठीक है। उसका यूजुअल मोड ऑफ लिविंग क्या है, डाइट कैसी है पेशेंट की, उसकी डोमेस्टिक सिचुएशन कैसी है, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप कंसिडर करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि या तो आप ये समझ लेंगे कि पेशेंट की डिज़ीज़ प्रोड्यूस क्यों हो रही है, या फिर वो डिज़ीज़ मेंटेन्ड क्यों है, अब तक वो ठीक क्यों नहीं हुई, ठीक है। और ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं रिकवरी के लिए, ठीक है। तभी रिकवरी होगी जब आप पेशेंट की मेंटेनिंग कॉज को रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। अब ऐसे में आप इसका एफोरिज्म रीड करेंगे तो यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज़ेस, जब हम फीमेल की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी प्रेगनेंसी कैसी रही है। अगर कोई प्रायर प्रेगनेंसीज़ हैं तो क्या वो एक्टोपिक तो नहीं है, ठीक है। क्या मिसकैरेजेस तो नहीं हो रहे हैं पेशेंट के बहुत फ्रीक्वेंटली, कहीं सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या बिल्कुल लॉस ऑफ डिज़ायर तो नहीं है इन अर्ली एजेस, ठीक है। स्टेरिलिटी, सक्लिंग के बारे में हमें पेशेंट से पूछना है। उसके मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या कलर है डिस्चार्ज का, कितने समय तक डिस्चार्ज हो रहा है, क्या डिस्चार्ज से पहले या डिस्चार्ज के बाद लयूकोरिया तो नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या ये कॉन्टीन्यूस फ्लो है या इंटरप्टेड है, कुछ शॉर्ट इंटरवल्स पे आ जाता है या अपने टाइम से आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके बॉडीली और मेंटल एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, ये सेंसेशंस, ये पेन्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे एब्डोमिनल पेन होता है या मुझे थाई में पेन होता है बिफोर मेंसेस, तो ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है नोट डाउन करना। तो ये सब जो है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पेशेंट के बारे में आपको बताता है, ये आपको टोटलिटी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे बात करें 95th एफोरिज्म की। In chronic disease, the investigation of the signs of disease above mentioned and of all others must be pursued as carefully and circumstantially as possible, and the most minute particularities must be attended to, partly because in these diseases there are the most characteristic and least resemble those of acute diseases, and if a cure is to be effected, they cannot be too accurately noted. Partly because the patients become so used to their long sufferings that they pay a little or no heed to the lesser accessory symptoms, which are often very pregnant with meaning, characteristic, often very useful in determining the choice of the remedy, and regard them almost as necessary part of their condition, almost as health, the real feeling of which they have well forgotten in the sometimes 15 or 20 years of suffering, and they can scarcely bring themselves to believe that these accessory symptoms, these greater or less deviations from the healthy state, can have any connection with their principal malady. अब इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि हमें ये जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं इनमें साइंस ऑफ डिजीज़ेज़ इन्वेस्टिगेट करने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे जो हमने जैसे अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा कि हमें इतनी सारी चीज़ें पूछनी चाहिए एक विमेन से, वो इसलिए भी पूछनी चाहिए क्योंकि क्या होता है कि कई बार पेशेंट काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रहा होता है, पर लेकिन क्योंकि वो सफ़र करते करते एक आदत बन जाती है तो उसको लगता नहीं है कि ये कोई बीमारी है। अब कुछ ही दिन पहले मुझे एक पेशेंट मिली जिन्होंने मुझे बताया कि उनको सिर्फ 2 डेज़ ही ब्लीडिंग होती है, ठीक है, विच इज़ वेरी अनकॉमन कि सिर्फ 2 डेज़ ब्लीडिंग होना, एंड दैट टू फर्स्ट डे वो बता रहे थे कि उन्हें बहुत सीवियर पेन होता है एब्डोमेन में। तो ये क्योंकि वो काफ़ी समय से फ्रॉम द प्यूबर्टी शी हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग इट, तो उन्हें वो सिम्टम ही नहीं लगता, ठीक है। बहुत पूछने पर मुझे पता चला कि हाँ पेशेंट को ऐसी भी दिक्कत है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे जो लेसर एसेसरी सिम्टम्स होते हैं ना, पेशेंट कई बार इनको निगलेक्ट कर देते हैं, उनको लगता है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन जब तक आप उसको अच्छे से इंटेरोगेट नहीं करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे नहीं, इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो आपको एक टोटलिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक टोटलिटी में एड अप करती हैं, ठीक है, और आपको करेक्ट ड्रग पिक्चर तक लेके जाती हैं।
ठीक है। तो इनका भी आपने ध्यान रखना है। ये जो लेसर एसेसरी सिम्टम्स है इनके बारे में भी आपको पेशेंट से पूछना है, छोटी छोटी बातों के बारे में जो भी आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट एफोरिज्म रीड करते हैं, एफोरिज्म 96। इसमें हाइपोकॉन्ड्रियाक्स की बात हो रही है। चलिए एक बार रीड करते हैं, फिर बताते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक्स होते क्या हैं। Besides this, patients themselves differ so much in their dispositions that some, especially the so-called hypochondriacs and other persons of great sensitiveness and impatient of suffering, portray their symptoms in too vivid colors, and in order to induce the physician to give them relief, describe their ailments in exaggerated expression. A pure fabrication of symptoms or sufferings will never be met within hypochondriacs. Even in the most impatient of them, a comparison of the sufferings they complain of at various times, when the physician gives them nothing at all or something quite unmedical, proves this plainly. But we must deduct something from their exaggeration. At all events, ascribe the strong character of their expressions to their expressions when talking of their ailments become of itself an important symptom in the list of features of which the portrait of the disease is composed. The case is different with insane persons and rascally feigners of the disease. अब इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ने हाइपोकॉन्ड्रियाक्स के बारे में बताया है। ये वो लोग होते हैं जो एबनॉर्मली एंशियस होते हैं। एक तो होता है ना कि जिनको चिंता होती है, फिक्र होती है अपनी सेहत की, तो अपना ध्यान रखते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उस एंजाइटी को एंशियसनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वो हाइपोकॉन्ड्रियाक्स होते हैं जो एबनॉर्मली एंशियस होते हैं अपनी हेल्थ को लेके। ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं अपनी सफरिंग को लेके कि चाहते हैं कि फटाफट इन्हें रिलीफ मिल जाए। और ये रिलीफ जल्दी पाने के लिए फिजिशियन को अपनी जो इनकी एलिमेंट्स होती है ना उनको बहुत एग्जैजरेट करके बताते हैं, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। लेकिन जो इम्पेशेंस है उनके अंदर सफरिंग को लेके वो उनको बैठने नहीं देगा, वो एंशियसनेस उनको बैठने नहीं देगी टिक के। तो यहाँ पे डॉक्टर हेनेमन इन्हीं हाइपोकॉन्ड्रियाक्स के बारे में बता रहे हैं कि हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट की डिस्पोजिशन अलग है। तो स्पेसिफिकली जो हाइपोकॉन्ड्रियाक्स हैं वो क्या करते हैं, वो एग्जैजरेट करके अपनी एलिमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के सामने। अब इस एफोरिज्म के फुटनोट में डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि हालांकि हाइपोकॉन्ड्रियाक्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करेंगे अपनी बातों को, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, पर ये मनगढ़ंत बातें नहीं होती। दे डू नॉट फैब्रिकेट देयर सिम्टम्स। हालांकि जितने भी हाइपोकॉन्ड्रियाक्स हैं ये जेन्युइन सिम्टम्स ही एग्जिबिट करते हैं। और जब भी आप देखेंगे कि ये कंप्लेन करते हैं तो इनके जो सिम्टम्स हैं ना वो कंसिस्टेंट रहते हैं। आप चाहे इनको मेडिसिन दो, चाहे आप इनको प्लेसिबो दो, इनके जो कंप्लेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगी, ये ठीक नहीं होती, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी जो है ये इंडिकेट करती है कि इनकी कंप्लेंट्स जो हैं ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इमेजिनरी होना, इंसेन होना और लास्ट में हमने पढ़ा फेनर डिजीज़, यानी कि झूठा दिखावा करना या मनगढ़ंत बातें बनाना, ये हाइपोकॉन्ड्रियाक्स उन लोगों से बहुत अलग होते हैं। डॉक्टर हेनेमन कह रहे हैं कि ये जो एग्जैजरेशन है ना, हमें इसको भी अकाउंट में लेना चाहिए, हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो इनके इतने स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं अपने एलिमेंट्स के बारे में, ये भी एक डिजीज़ प्रोफाइल का ही पार्ट है, ठीक है। डॉक्टर हेनेमन ने कहा कि ये जो हाइपोकॉन्ड्रियाक्स हैं ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द इंसेन पीपल एंड फ्रॉम द फेनर्स। फेनर्स कौन होते हैं? जो झूठी मूठी अपनी बीमारी दिखाते हैं, हालांकि वो बीमार नहीं होते, बट दे शो अदर पीपल। तो ना ही तो ये हाइपोकॉन्ड्रियाक्स पागल हैं और ना ही ये फेनर्स हैं, दिखावा नहीं कर रहे झूठा। अब नेक्स्ट एफोरिज्म रीड करते हैं, एफोरिज्म नंबर 97। Other individuals of an opposite character, however, partly from indolence, partly from false modesty, partly from a kind of mildness of disposition or weakness of mind, refrain from mentioning a number of their symptoms, describe them in vague terms, or allege some of them to be of no consequence. इस एफोरिज्म में
डॉक्टर हेनेमन ने हाइपोकॉन्ड्रियक्स के ऑपोजिट की बात की है। अब हाइपोकॉन्ड्रियक्स तो वो हैं जो एग्जैजरेट करते हैं अपनी कंप्लेंट्स, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अंडर रिपोर्ट करते हैं अपने सिम्टम्स को, यानी कि जितना उनको बताना चाहिए उतना भी नहीं बताते। उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ये अंडर रिपोर्टिंग के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। इट कुड बी इंडोलेंस, कि पेशेंट लेजी है, इनडिफरेंट है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, पेशेंट अपनी चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहता डॉक्टर के साथ, ठीक है। या फिर हो सकता है देयर इज़ फॉल्स मोडेसिटी, कि एम्बैरेस्ड हो पेशेंट, ठीक है, या इनअप्रोप्रिएट फील करे कि मुझे ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए, या माइल्डनेस हो सकती है डिस्पोजिशन की, या वीकनेस ऑफ माइंड हो सकता है। यानी कि एक जेंटल नेचर वाला आदमी भी चाहेगा कि कोई चीज़ अपने बारे में थोड़ा कम ही बताए किसी को, ठीक है। या किसी पेशेंट की मेंटल स्टेट वीक होती है तो वो भी हेजिडेंट होता है, वो भी नहीं बता पाता, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के बारे में नहीं कम्युनिकेट कर पाता। अब ऐसे पेशेंट्स के साथ क्या करना चाहिए। ऐसे जो ये ऑपोजिट पेशेंट्स होते हैं टू द हाइपोकॉन्ड्रियक पीपल, ये पेशेंट्स अपने सिम्टम्स बहुत वेगली या अनक्लियर टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, जो कि फिजिशियन के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है उसकी एक्यूरेट कंडीशन को समझ पाना। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ये जनरली कुछ सिम्टम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको अनइम्पॉर्टेंट समझ के डॉक्टर को रिवील ही नहीं करते, ठीक है। आउट ऑफ दोज रीजंस जो कि अभी हमने पढ़े, कि इंडोलेंस हो सकता है, फॉल्स मोडेसिटी हो सकती है, इट कुड बी माइल्डनेस ऑफ डिस्पोजिशन और वीकनेस ऑफ माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर हेनेमन ने ऐसे लोगों के बारे में बताया इस एफोरिज्म में। चलिए अब नेक्स्ट एफोरिज्म रीड करते हैं, एफोरिज्म नंबर 98। Now, as certainly as we should listen particularly to the patient's description of his sufferings and sensations and attach credence especially to his own expressions, wherewith he endeavours to make us understand his ailments, because in the mouths of his friends and attendants they are usually altered and erroneously stated, so certainly on the other hand in all diseases, but especially in the chronic ones, the investigation of the true complete picture and its peculiarities demands special circumspection, tact, knowledge of human nature, caution in conducting the inquiry, and patience in an eminent degree. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ये हाईलाइट कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंस कि हमें पेशेंट की बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है। वी हैव टू पे क्लोज अटेंशन टू हाउ पेशेंट डिस्क्राइब्स, क्योंकि पेशेंट अपनी सफरिंग और अपने सेंसेशंस खुद बता सकता है अच्छे तरीके से, रादर देन जो कि वो अपने साथ लाया हो, चाहे उसका फ्रेंड है चाहे उसका अटेंडेंट है। हो सकता है कि कई बार उनके कहे हुए वर्ड्स ऑल्टर्ड हो या मिस रिप्रेजेंटेड हो, तो हमें फर्स्ट हैंड अकाउंट पे ज़्यादा रिलाई करना है रादर देन ऑन सेकेंड हैंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ फर्स्ट हैंड अकाउंट क्या है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट हैंड अकाउंट है पेशेंट की बातों को हमने ज़्यादा महत्व देना है। और सेकंड जो हमारा सेकंड हैंड रिपोर्ट है वो हमारे अटेंडेंट्स या फ्रेंड्स जो भी पेशेंट को अकम्पनी करते हैं वो लोग हैं। कई बार क्या होता है ना, ये जो फ्रेंड्स और अटेंडेंट्स होते हैं ये अनइंटेंशनली या इंटेंशनली दोनों तरीके से मिसस्टेट कर देते हैं पेशेंट के सिम्टम्स को, इसलिए हमें पेशेंट की बातों पर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए रादर देन ऑन द अटेंडेंट्स। अगर हमें पेशेंट की कंडीशन का एक ट्रू नेचर समझना है तो हमें पेशेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना इम्पॉर्टेंट है। क्रॉनिक डिजीज़ में एक कंप्लीट डिजीज़ पिक्चर बनाने के लिए हमें एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके लिए कुछ क्वालिटीज़, कुछ स्किल्स होने चाहिए फिजिशियन के पास, जैसे कि सर्कमस्पेक्शन, केयरफुल होना पड़ता है टू कंसिडर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन। टैक्ट होना चाहिए ताकि पेशेंट को आप हैंडल कर सको उसकी कंडीशन को विद सेंसिटिविटी एंड डिप्लोमेसी। नॉलेज होनी चाहिए ह्यूमन नेचर की, क्योंकि वेरिएशंस होते हैं ना, हाउ डिफरेंट इंडिविजुअल माइट एक्सप्रेस और एक्सपीरियंस देयर सिम्टम्स। कॉशन इन कंडक्टिंग द इंक्वायरी, बहुत जल्दी से आप किसी की भी डिटेल को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें, मिसलीडिंग क्वेश्चंस ना पूछें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिजिशियन के अंदर होने चाहिए, ऐसे स्किल्स। पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको चुप रह के पेशेंट की सारी बातों को समझना है, उसको ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट, जो बेसिक स्किल है वो होनी चाहिए पेशेंस। अगर आप धैर्य ही नहीं रखेंगे तो आप पेशेंट की बातों को सुनेंगे कैसे। चलिए अब नेक्स्ट एफोरिज्म पे आते हैं, एफोरिज्म 99। On the whole, the investigation of acute diseases or of such as have
existed but a short time is much the easiest for the physician, because all the phenomena and deviations from the health that has been put recently lost are still fresh in the memory of the patient and his friends, still continue to be novel and striking. The physician certainly requires to know everything in such cases also, but he has much less to inquire into. They are for the most part spontaneously detailed to him. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि जो एक्यूट डिजीजेस होती हैं ना, फिजिशियन के लिए ये इन्वेस्टिगेट करना बहुत ईजी होता है. क्यों? क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं बहुत रीसेंट होते हैं, दे आर मोर मेमोरेबल, याद रहते हैं, एंड दे आर मोर लाइकली टू बी डिस्क्राइब्ड इन डिटेल. उसके कंपेनियंस भी उसके हेल्थ के बारे में डिटेल दे पाते हैं. जबकि इसका ऑपोजिट देखें क्रॉनिक डिजीज़ में, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. वो डिफ़िकल्ट इसलिए भी होता है क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं दे आर लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत लेस डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, और बहुत हार्डर होते हैं टू रिकॉल. ये बहुत मुश्किल से याद आती हैं चीज़ें, चुन चुन के कुछ हिस्से पता चलते हैं पेशेंट से या उसके अटेंडेंट से. और क्योंकि बहुत पुरानी बात हो चुकी होती है, तो कई बार पेशेंट को जो असेसरी सिम्टम होता है वो बताना याद भी नहीं रहता. चलिए अब नेक्स्ट एफोरिज्म पे आते हैं, एफोरिज्म नंबर 100. In investigating the totality of symptoms of epidemic and sporadic diseases, it is quite immaterial whether or not something similar has ever appeared in the world before under the same or any other name. The novelty or peculiarity of a disease of that kind makes no difference either in the mode of examining or of treating it, as the physician must anyway regard to pure picture of every prevailing disease as if it was something new and unknown, and investigate it thoroughly for itself if he desire to practice medicine in a real and radical manner, never substituting conjecture for actual observation, never taking for granted that the case of disease before him is already wholly or partially known, but always the more requisite in such cases, as a careful examination will show that every prevailing disease is in many respects a phenomena of a unique character, differing vastly from all previous epidemics, to which certain names have been falsely applied, with the exception of these epidemics resulting from a contagious principle that always remain the same, such as smallpox, measles, etc. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि हर एपिडेमिक और स्पोरेडिक डिजीज़ को हमने एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ देखना है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ ही अप्रोच करना है. हमें हर डिज़ीज़ की डिटेल, पेशेंट की डिटेल, उसकी इंडिविजुअलाइज्ड एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है, क्योंकि ये अप्रोच बहुत क्रूशल है फॉर प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इन अ इफ़ेक्टिव मैनर. अगर हमें रेडिकली चलना है, अगर हमें स्किलफुली चलना है, तो हमें यही अप्रोच लेके चलना पड़ेगा. तभी हम ये जो एजम्पशंस के पिटफॉल्स हैं ना, इनको अवॉइड कर पाएंगे. हमें ये जो कंजेक्चर्स हैं जो बेस्ड हैं ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस विद सिमिलर डिजीज़, इनको साइड करना पड़ेगा. वी हैव टू फोकस ऑन इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ एवरी केस, ठीक है. अब यहाँ पर डॉक्टर हेनेमन ये बता रहे हैं कि इट डज़ नॉट मैटर वेदर अ सिमिलर डिजीज़ हैज़ अपीयर्ड बिफोर. हर एपिडेमिक, हर स्पोरेडिक डिजीज़, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड ऑन इट्स ओन टर्म्स. इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज़ इंडिविजुअली होनी चाहिए, चाहे वो स्पोरेडिक हो, चाहे वो एपिडेमिक हो, ठीक है. फिजिशियन को ये रिगार्ड रखना चाहिए कि हर डिजीज़, चाहे वो पहले से उसे जानते हो, उसका कोई नाम दे रखा हो एलोपैथ्स ने, कुछ भी हो, पर उनके लिए वो एक एंटायरली न्यू और अननोन डिजीज़ है, तभी वो पेशेंट को ठीक कर पाएंगे. एक थॉरो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी केस को ट्रीट करने के लिए. डॉक्टर हेनेमन यहाँ पे ये भी कॉशन कर रहे हैं फिजिशियंस को कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड आप पेशेंट को दवाई दें, वरना ये जो मियर एजम्पशंस हैं, जो उन्होंने 83rd एफोरिज्म में भी क्लियर करा था कि आपको एजम्पशंस पे नहीं चलना है, तो जो अगर आप इस एजम्पशंस पे जाएंगे तो आप पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे. यूनिक कैरेक्टर है हर डिज़ीज़ का, ठीक है, और हमें उस यूनिक कैरेक्टर को समझना है. हमें पेशेंट में ये देखना है कि क्या चीज़ है जो पेशेंट को इस बीमारी में भी बाकी सबसे अलग कर रही है. केयरफुल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एसेंशियल पार्ट है ये प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का. हाँ, डॉक्टर हेनेमन ने एक्सेप्शंस की बात की.
अब हमने पढ़ा कि हर केस को हमने इंडिविजुअली हैंडल करना है, पर लेकिन कुछ कॉन्टेजियस डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स जिनका एक कंसिस्टेंट प्रिंसिपल है और जो जल्दी से ओवर द टाइम चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ऐसी डिजीज़ेज़ आर एक्सेप्शन टू द रूल। उनका नेचर, उनका ट्रीटमेंट रिलेटिवली स्टेबल रहता है। चलिए अब नेक्स्ट एफोरिज्म पे आते हैं। एफोरिज्म नंबर 101। It may easily happen that in the first case of an epidemic disease that presents itself to the physician's notice, he does not at once obtain a knowledge of its complete picture, as it is only by a close observation of several cases of every such collective disease that he can become conversant with the totality of its signs and symptoms. The carefully observing physician can, however, from the examination of even the first and second patients, often arrive so nearly at a knowledge of the true state as to have in his mind a characteristic portrait of it, and even to succeed in finding a suitable homeopathically adapted remedy for it. डॉक्टर हेनेमन इस एफोरिज्म में बता रहे हैं कि जब भी कोई एपिडेमिक केस देखते हैं आप, मान लीजिए आपने पहला केस देखा, फिजिशियन ने फर्स्ट केस देखा, तो हो सकता है कि वो एक बार में उस डिज़ीज़ का पूरा पिक्चर ड्रॉ ना कर पाए, कंप्लीट पिक्चर ना ड्रॉ कर पाए, क्योंकि कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ करने के लिए एक क्लोज ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। आपको बहुत सारे कलेक्टिव डिजीज़ के बारे में स्टडी करना पड़ता है। यू हैव टू बी कन्वर्जेंट ताकि आप टोटलिटी ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स बना सकें, ड्रॉ कर सकें। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप केयरफुली ऑब्ज़र्व करते हैं। जो एक केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन है वो ऐसा कर सकता है कि फर्स्ट या सेकंड पेशेंट देखने के बाद ही वो एक ट्रू स्टेट अपने माइंड में डेवलप कर ले और एक कैरेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर ले, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ हो जाए उसके माइंड में, ताकि वो एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी उसके लिए ढूंढ सके, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन। फिजिशियन की ऑब्जर्वेशन कितनी केयरफुल है, ठीक है, फिजिशियन के स्किल्स कैसे हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट हैं इन डिटरमाइनिंग कि आप एपिडेमिक डिजीज़ के लिए क्योर कितनी जल्दी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब अगले एफोरिज्म पे आते हैं। एफोरिज्म 102। In the course of writing down the symptoms of several cases of this kind, the sketch of the disease picture becomes ever more and more complete, not more spun out and verbose, but more significant, more characteristic, and including more of the peculiarities of this collective disease. On the one hand, the general symptoms, example loss of appetite, sleeplessness, etc., become precisely defined as to their peculiarities, and on the other, the more marked and special symptoms which are peculiar to but few diseases and of rarer occurrence, at least in the same combination, become prominent and constitute what is characteristic of this malady. All those affected with the disease prevailing at a given time have certainly contracted it from one and the same source and hence are suffering from the same disease. But the whole extent of such an epidemic disease and the totality of its symptoms, the knowledge whereof which is essential for enabling us to choose the most suitable homeopathic remedy for this array of symptoms, is obtained by a complete survey of the morbid picture, cannot be learned from a single patient, but is only to be perfectly deduced or abstracted and ascertained from the sufferings of several patients of different constitutions. The physician who has already in the first cases been able to choose a remedy approximating to the homeopathic specific will, from the subsequent cases, be enabled either to verify the suitableness of the medicine chosen or to discover a more appropriate, the most appropriate homeopathic remedy. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन एपिडेमिक डिजीज़ की एक एक्यूरेट पिक्चर ड्रॉ करने के बारे में बता रहे हैं कि आप कैसे वो एपिडेमिक डिजीज़ की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। वो एम्फसाइज़ करते हैं कि आप पहले डेटा कलेक्ट कीजिए, एंड दैट टू फ्रॉम मल्टीपल पेशेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि हर पेशेंट की डिस्पोजिशन, हर पेशेंट की सेंसिटिविटी अलग है, ठीक है, ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बना सकें उस डिज़ीज़ की कि वो किस पेशेंट को ज़्यादा अफेक्ट करती है, कौन सा डिस्पोजिशन, कौन सा टेम्परामेंट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा अफेक्टेड है। और जब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बना लेंगे ना उस डिज़ीज़ की, तो आपके लिए होम्योपैथिक रेमेडी ढूंढना, एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी ढूंढना आसान हो जाएगा।
जैसे ही फिजिशियन सेवरल केसेस अप्रोच करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं एपिडेमिक डिजीज़ में, उतना ही ज़्यादा इसका डिजीज़ पिक्चर क्लियरर होता जाता है। ये जो प्रोसेस है, दिस डज नॉट मेक डिस्क्रिप्शन मोर वर्बोस बट रैदर मोर प्रिसाइज, ठीक है, ताकि ये डिजीज़ के एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर सकें। डिटेल सिम्टम्स की ज़रूरत होती है। जनरल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीपलेसनेस, ठीक है, ये बहुत ग्रेट स्पेसिफिसिटी रखते हैं क्योंकि इनकी पिक्युलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज़। हालांकि देयर इज़ कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि all the individuals affected by epidemic at a given time they have contracted the disease from the same source। लेकिन जो कंप्लीट एक्सटेंट है ना एपिडेमिक का, जो टोटलिटी है सिम्टम्स की, वो आप सिर्फ एक पेशेंट से नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, यानी कि बहुत सारे पेशेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पता चलेगा कि कौन सा पेशेंट ज़्यादा डिस्पोज्ड है टू दिस कंडीशन, और फिर आप अपनी रेमेडी को रिफाइन कर सकते हैं। इनिशियली क्या होता है, फिजिशियन चूजेज अ रेमेडी जो कि अप्रॉक्सीमेट होम्योपैथिक स्पेसिफिक होती है, ठीक है, पर लेकिन जैसे जैसे आप और कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं, डिफरेंट पेशेंट्स को अप्रोच करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि विच इज़ द फाइनेस्ट रेमेडी, कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सी मोस्ट सिमिलिमम है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट एफोरिज्म रीड करते हैं, एफोरिज्म नंबर 103। In the same manner as has here been taught relative to the epidemic disease, which are generally of an acute character, the miasmatic chronic maladies, which as I have shown always remain the same in their essential nature, especially the SORA, must be investigated as to the whole sphere of their symptoms in a much more minute manner than has ever been done before. For in them also one patient only exhibits a portion of their symptoms, a second, a third, and so on, present some other symptoms which also are but dissevered as it were portion of the totality of the symptoms which constitute the entire extent of this malady, so that the whole array of the symptoms belonging to such a miasmatic chronic disease, and especially to the SORA, can only be ascertained from the observation of very many single patients affected with such a chronic disease, and without a complete survey and collective picture of these symptoms, the medicines capable of curing the whole malady homeopathically cannot be discovered. And these medicines are at the same time the true remedies of the several patients suffering from such chronic affections. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन डिटेल्ड और एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ सिम्टम्स की बात कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा पेशेंट्स हम देखेंगे उतना एक्यूरेटली हम उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और क्रॉनिक डिजीज़ेस को ट्रीट कर पाएंगे जो कि एक मियाज़मेटिक ओरिजिन से हुई हैं, स्पेसिफिकली दोज क्रॉनिक डिजीज़ेस, ठीक है। अब हमने एपिडेमिक डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा। एपिडेमिक डिजीज़ेस क्या होती हैं, वो बहुत एक्यूट डिजीज़ेस होती हैं, और ये जो क्रॉनिक मैलेडीज़ हैं ये बहुत परसिस्टेंट और अनचेंजिंग एसेंशियल नेचर की हैं, ठीक है। इनमें जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं ये जनरली मियाज़मेटिक ओरिजिन की होती हैं, जैसे कि सोरा, ठीक है। तो इसके लिए सोरा को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक्यूट डिजीज़ में कोई भी सिंगल पेशेंट कंप्लीट एरे ऑफ सिम्टम एग्जिबिट नहीं करता। सिमिलरली क्रॉनिक डिजीज़ इन्वेस्टिगेट जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि सिंगल पेशेंट जो है वो एक पोर्शन ऑफ टोटल ऑफ सिम्टम्स दिखाता है, ठीक है। अगर आप सोरा को इन्वेस्टिगेट करने चलेंगे तो एक पेशेंट में कुछ मिलेगा, दूसरे पेशेंट में कुछ मिलेगा। अगर आपको फुल स्कोप समझना है किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ का, जैसे कि सोरा का, तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट पेशेंट्स को ऑब्जर्व करें और उनके सिम्टम्स को डॉक्यूमेंट करें, ठीक है। एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ सिम्टम्स तभी निकल के आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, उनकी ऑब्जर्वेशंस को एक कंपाइल करके रखेंगे। विदाउट अ फुल एंड डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कलेक्टिव सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्कवर द एप्रोप्रिएट मेडिसिन जो कि होम्योपैथिकली क्योर करे। चलिए अब केस टेकिंग का लास्ट एफोरिज्म रीड करते हैं, विच इज़ एफोरिज्म नंबर 104। When the totality of the symptoms that specially mark and distinguish the case of disease, or in other words, when the picture of the disease, whatever be its kind, is once accurately sketched, the most difficult part of the task is accomplished.
The physician has then the picture of the disease, especially if it be a chronic one, always before him to guide him in his treatment. He can investigate it in all parts and can pick out the characteristic symptoms in order to oppose to these, that is to say, to the whole malady itself. A very similar artificial morbific force in the shape of a homeopathically chosen medicinal substance selected from the lists of symptoms of all the medicines whose pure effects have been ascertained. And when, during the treatment, he wishes to ascertain what has been the effect of the medicine and what change has taken place in the patient's state, at this fresh examination of the patient, he only needs to strike out of the list of the symptoms noted down at the first visit those that have become ameliorated, to mark what still remain and add any new symptoms that may have supervened. The old school physician gave himself a very little trouble in this matter in his mode of treatment. He would not listen to any minute detail of all circumstances of his case by the patient. Indeed, he frequently cut him short in his relation of his sufferings in order that he might not be delayed in the rapid writing of his prescription, composed of a variety of ingredients unknown to him in their true effects. No allopathic physician, as has been said, sought to learn all the circumstances of the patient's case, and still less did he make a note in writing of them. On seeing the patient again several days afterwards, he recollected nothing concerning the few details he had heard at the first visit. He had allowed everything to go in at one ear and out at the other. At subsequent visits, he only asked a few general questions, went through the ceremony of feeling the pulse at the wrist, looked at the tongue, and at the same moment wrote another prescription on equally irrational principles, or ordered the first one to be continued, and with a graceful bow, he hurried off to the 50th and 60th patient he had to visit. In this thoughtless way, in the course of that forenoon, the profession which of all others require actually the most reflection, a conscientious, careful examination of the state of each individual patient, and a special treatment founded thereon, was conducted in this manner by persons who called themselves physicians, rational practitioners. The result, as might naturally be expected, was almost invariably bad, and yet patients had to go to them for advice, partly because there were none better to be had, partly for fashion's sake. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि जैसे ही आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मार्क कर लेते हैं और जैसे ही आप एक डिज़ीज़ को एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं दूसरे डिज़ीज़ से, द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जो कि फिजिशियन के टास्क में है वो आप अकम्प्लिश कर लेते हैं. जो डिटेल्ड पिक्चर है डिज़ीज़ की, वो क्रॉनिक केसेस में स्पेशली एक कांस्टेंट गाइड की तरह हेल्प करती है फिजिशियन को ट्रीटमेंट के लिए. होम्योपैथिक अप्रोच क्या है? अब फिजिशियन इन्हीं डिटेल्ड सिम्टम पिक्चर को यूज़ करता है ताकि वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करे, आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक फोर्स को सिलेक्ट कर सके, एक सिमिलर आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक फोर्स को, ताकि होम्योपैथिकली वो एक मेडिसिनल सब्सटेंस चूज़ करे जो कि पेशेंट को क्योर करने में हेल्प करे. ये जो सब्सटेंस है, इट इज़ चोजन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स जिनका इफ़ेक्ट प्रिसाइजली डिटरमिन्ड हो. ऑनगोइंग असेसमेंट पे अगर हम देखें कि ट्रीटमेंट के समय फिजिशियन रीअसेस करता रहता है पेशेंट को टू डिटरमाइन द इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन. वो ये भी नोट करेगा कि क्या सिम्टम्स इम्प्रूव हुए हैं, क्या सिम्टम्स रह गए हैं और क्या नए सिम्टम्स ऐड हुए हैं. ठीक है, ये जो फॉलो अप है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केस टेकिंग का. ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो कॉन्टिन्यूस एडजस्टमेंट और ट्रीटमेंट के फाइन ट्यून को अलाउ करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथिक अप्रोच के लिए. अब इसी का ऑपोजिट, इसी का क्रिटिक जो है वो है एलोपैथिक मेडिसिन या एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स. अब यहाँ डॉक्टर हेनेमन ट्रेडिशनल एलोपैथिक अप्रोच को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक थॉरोनेस नहीं है. डॉक्टर हेनेमन यहाँ एलोपैथिक फिजिशियन को बोल रहे हैं कि ये पेशेंट्स को जल्दी कट शॉर्ट कर देते हैं, उनके सिम्टम्स को सुनते नहीं हैं, दे इग्नोर एंड दे जस्ट प्रिस्क्राइब द मेडिकेशंस बिना उसके फुल इफ़ेक्ट्स जाने. अब बीइंग एन होम्योपैथ आपको पता है कि आपकी ड्रग प्रूविंग में ड्रग कैसे
एक्शन करती है, ठीक है, आपका फिजियोलॉजिकल एक्शन आपको पता है ड्रग का, ह्यूमन बीइंग पे ऑलरेडी टेस्टेड है, पर लेकिन एलोपैथिक ड्रग्स दे आर नॉट टेस्टेड, दे आर नॉट ड्रग प्रूव्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसीलिए यहाँ डॉक्टर हेनेमन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि विदाउट नोइंग देयर फुल इफ़ेक्ट्स वो मेडिसिन बस प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दे डोंट इवन लिसन टू द पेशेंट्स डिटेल, ना वो कुछ नोट करते हैं अपने पास, एक सुपरफिशियल असेसमेंट कर देते हैं कि हाँ चलो जी अपनी नर्व्स दिखा दो, जीभ दिखा दो, बस। जैसे ये सुपरफिशियल असेसमेंट ख़त्म होती है, एक नया प्रिस्क्रिप्शन तैयार रहता है एलोपैथ्स के पास। तो यहाँ डॉक्टर हेनेमन कह रहे हैं कि हालांकि इनके रिजल्ट्स इतने ख़राब हैं, इतने बैड हैं, तब भी पेशेंट्स इनके पास जा रहे हैं एडवाइस के लिए। इसके रीज़न दो ही हो सकते हैं, या तो इसलिए कि कोई और नहीं उनको समझ में आ रहा जो उनसे बेटर हो, और दूसरा कि फ़ैशन सेक, कि सोसाइटल नॉर्म्स ही ऐसे हैं, हर कोई एलोपैथ के पास जा रहा है तो चलो हम भी चल लेते हैं। चलिए, दैट्स ऑल इन द वीडियो। Thank you for watching.